ذریعے سے ایک صاف ستھرا دین دیا. حدیث میں فرما دیا الدین یسر، دین بہت آسان ہے. مالدار بھی چل سکتا ہے، غریب بھی چل سکتا ہے، عورت بھی چل سکتی ہے، اور جو ہے نا بچے بھی چل سکتے ہیں، اور پڑھے لکھے بھی چل سکتے ہیں، اور ان پڑھ بھی چل سکتے ہیں، شہری بھی چل سکتے ہیں، دیہاتی بھی چل سکتے ہیں. ہر ایک اس دین پر چل سکتے، اتنا آسان ہے، اس پہ کوئی تنگی نہیں ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی پیدا نہیں کی ہے. ہر عمل، چاہے عبادات کا ہو، چاہے معاملات کا عمل ہو، چاہے معاشرت کا عمل ہو، چاہے اخلاقیات کا عمل ہو، چاہے ایمانیات کا عمل ہو، چاہے ازدواجی عمل ہو، یا اجتماعی عمل ہو، یا انفرادی عمل ہو، زندگی کا ہر موڑ آسان ہے، اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. اس نے فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام. اے میرے بندو، جس کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا وہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اس لیے کہ لفظ دین کا ترجمہ بدلے کا ہے. مالک یوم الدین بدلے کا دین، جزا کا دین. ان الدین عند اللہ الاسلام، جو بدلہ دیا جائے گا کل قیامت میں ہر ایک کو، وہ کس چیز پر بدلہ دیا جائے گا؟ فرما بدلے کی چیز اسلام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام ہی کو پسند کیا ہے اور اسلامی زندگی ہی کو چاہا ہے. اس لیے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو کوئی بھی جہاں کہیں بھی ہو، جس زمانے کا ہو، اگر اپنی منمانی کر کے اور اپنے جینے کے طریقے، اپنے طریقے پر، سوسائٹی کے طریقے پر اور ماحول کے رہبروں پر اپنے آپ کو بنا کر آیا، تو اللہ کہتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہمارے وہاں مردود ہے، قبول نہیں ہوگا. اور اتنا ہی نہیں کہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ سب سے بڑا خسارے میں وہ ہوگا. ادنا محترم حضرات، اخویدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعہ دگی یور عبدین سے یامنا لائن اللہ نسل نرف بنے، یامنا سین اللہ تعالیٰ نسل نرف بنے. پوری دنیا سے لائنی وہ ہر ایک مذہب خودی مکتے گی خواہدی گی بھابا مذہب اخویدی دینی اسلام سے لے سیکھک تنے بہی قیامت کے نمت سو بدلا کھنڈا دوری بیسا اتو پا دین امو بوبا بدلا کھنڈا ہوئی با محترم حضرات. سیکی دن سی قیامنا اللہ نا لہن بگے ہائی با مطلب دا جتنا لئی با انام ہوئی گیرا، اہن ہوئی گیرا، نپی ہوئی گیرا، نپا ہوئی گیرا، سیدہ چت پا لوئی نمک نمی با گاؤں دا لئی با مسک ہوئی گیرا، دین سیدہ چت پا نمی، شہر دا لئی با مسک ہوئی گیرا، دین سیدہ چت پا نمی. ہر ایک وہ سب خودی مکتا ہر حالت تا لئی گیرا دین سیدہ چت پا نمبا کی مادہ اللہ تعالیٰ نا سیکی دین سیدہ تھمبیرے با ادو ننے انام مچا مچا خودی مکتا مکتب تا کابو خودی مکتا سیکی سی یاد تا ہونے بسے الدین یسرون، دین ہائی بسے خواہدی یہ لائی بنے اللہ تعالیٰ نا دین سی بلو نا تھا رکھتے ہائی بسے سیکی سے ہر ایک مسک خودی مکتا سیکی سی لہر یاد تا ہونے بنے با محترم حضرات. سیکی دین سنے کی ہے نلائی با اما ہوا لیتے ہیں قرآن کے منظر ان الدین عند اللہ الاسلام. دین ہے بدی سیکی سی بدلا ہے بنے با سیکی ای کوئینا محد ہے محد لوگ دوری بسے ہے قیامت کے نمتا اسلام سکت نہیں. سیکی اتو پد اما ہوا لیتے با سی اللہ نا اتو کی مطلق ایک ہوئی دا واضح کی ساتھ تا ایک ہوئی کی منسین گمنا ایک ہوئی دا کھنن گھر بنے با سیکی دین سنے کی ہے نلائی با اما ہوا لیتے ہے بسے ادونا قریب وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا کناکم ومی اما سیکی دین سیدہ سیکی اسلام سیدہ چلکتا بیجا ایگی اساگی مطنگ اننا ایگی اساگی منمانی اینا توننگ بدو دنیا سے ادھوم لبت جنت کی لمبی سی پھل نروئے گا بلکہ اچوبہ خسارہ دا محق سے لئی رہ بنے. جی اور لفظ اسلام جو ہے مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں سیرنڈر ہو جانا، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو منقاد اور مطیع بنا دینا کہ میری کوئی چاہت نہیں، میری کوئی مرضی نہیں، میرا آنکھ بھی مسلمان ہو جائے، میرے کان بھی مسلمان ہو جائے، میری زبان بھی مسلمان ہو جائے، میرا دماغ بھی مسلمان ہو جائے، میرے ہاتھ اور پیر بھی مسلمان ہو جائے، میرا دل بھی مسلمان ہو جائے. ہمارے ہر عضو سے مطالبہ ہے کہ ہر عضو جو ہے وہ مسلمان ہو. یا میرا آنکھ سے وہ دیکھوں جو اللہ چاہتے اور نبی نے بتلایا، میرے کانوں سے وہ سنوں جو میرے اللہ نے کہا ہے اور میرے نبی نے بتلایا، میرے ہاتھوں سے وہ کروں جو میرے نبی نے بتلایا، اور میں پیروں سے وہاں جاؤں اور ایسے جاؤں جیسے میرے نبی نے میری رہبری فرمائی. اس کا نام اسلام ہے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا اذ قال له
لہو ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ یاد کرو حضرت ابراہیم کا واقعہ کہ جب اللہ جل جلالہ میں نوالہ نے حضرت ابراہیم سے کہا اسلم، اسلام لے آؤ، سرنڈر ہو جاؤ، اپنی مرضی چھوڑ دو، کسی چیز میں اپنی مرضی نہیں، اپنی من چاہی نہیں، اپنی منمانی نہیں، اسلم۔ تو کیا جواب دیا؟ اسلمت لرب العالمین، اس رب کا اس رب جو عالمین کا رب ہے، میں اپنے آپ کو اسلام لے آیا، مسلمان ہو گیا، سرنڈر ہو گیا، اب میری کوئی چاہت نہیں ہے، تیرا حکم بیوی کے بارے میں آتا ہے، بیوی کو چھوڑ دوں گا وادی غیر ذی زرع میں، اگر تیرا حکم آتا ہے بچے کو ذبح کرنے کا، میری کوئی مرضی نہیں ہے، بچے کو ذبح کر دوں گا، اگر تیرا حکم آتا ہے آگ میں جانے کا، آگ میں چلا جاؤں گا، میری کوئی مرضی نہیں ہے۔ یہ ہے لفظ اسلام کا معنی۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، یہ اسلامی زندگی مطلوب ہے، اور اس کو لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ یہ اسی کی محنت ہے، یہ اسی کی کوشش ہے کہ ہر ایمان والا اور ہر مسلمان اسلامی زندگی پر آ جائے، تاکہ اس اسلامی زندگی میں اس کے لیے سلامتی ہو جائے، وہ ایمانی زندگی میں امن آ جائے، وہ دینی زندگی میں دیانت آ جائے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے سلامتی کے آنے کا، امن کے آنے کا اور دیانت کے آنے کا۔ محترم حضرات، اخوید پیری با اللہ کی مکیدگی جو دین نے اسلام ہے با بوسط سے سیگی مطلب کرینو ہے با مطلب جو آئی گی پنسی سیدہ آئی گی اسا گی من مانے اینا توننگ بطوری با میام سے لوئی نمک تھدو ہوگا جو اللہ نہ ہے با وفم خودی مقتدہ عمل تو ودھو اسلام ہے نکھنگنے ادونا جتنا آئی گی پارٹ خودی مقصی جو اللہ نہ پاملے با وفم تو بک آئی گی نا کونچی نا تاغ دبا جو اللہ نہ پاملے با مفم تو بک آئی گی منچلے ینگا ادونے با آئی گی ہر پارٹ خودی مقصی مسلمان کو ہن بگی مطلب سے آئی گی ناکونچی سی مسلمان کو ہن با آئی گی خود مسلمان کو ہن با آئی گی چین آئی گی میت آئی گی ہر پارٹ خودی مقصی مسلمان کو ہن با ہائی بدی جو اللہ نہ ہائی گو پسک خودی مق اللہ نہ پاملے با پسک خودی مقتدہ ای عمل تو با ای نسد با ادو کا اللہ نہ پام دا با پسک خودی مقتدہ ادو لوئی نمک تھدوک با ادو گنے با مسلمان ہائی بسی محترم حضرات ادونا جب جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ نہ ہائی با نہا مسلمان کوئی رو ایمان پر رو ادوی مطلب دا قال اسلمت لرب العالمین ای اللہ کی ادوگم لبا دین دا مسلمان کوئی ربا دین کری مطلب نو جہاں اللہ نہ حیری با پسک خدیم کری اس مسلمان کوئی رابا مطلب دا اینا ای کی پنچی جو ای کی عیسانہ پام جب پنچی دا لیلم لی با پسک خدیم کدو مسلمان کوئی رابا لینا لوئی نمک تھا دو گے جہاں اللہ نہ ای کی تو سی با ادوگم لبا زیے زرا کری کو با پسک اما پھوبا لائت ربا جیبا پاک با پسک اما پھوبا لائت ربا امم باگی امم باگ حقا نائی ربا مفند دا ای کی تو تھا دو محایر گسو ای تھا دو کنے ادوگا جو ای عیسانہ پادو زیبا دو حایر گسو ای ادوگم مدو نم لگنی اما سو ای مید چنگ چنگ چلو حایر گسو ادوگم لبا پسک چنگ دو نم لگنی حایری بیروا جیسا ای مسلمان کو ہری آئی بسے ادو حضرت ابراہیم علیہ السلام نا سیگی سنگ چے مسانا ماگی من مانی اما سو مانا مساگی جو مپنسی سیدھا توننگ بتھبو سنگ دو لوئی نمک تھدو ہوگا اللہ کی مرضی کی مطم انہا اللہ نا پاملی مپنسی دو دا لیہل لگا اوہن گھربانے با ادو نے با قرآن کی منم دھاری بسے نخو یاد تاو ادوگم لبا حضرت ابراہیم نا اللہ تا ہائی بھی بدلے اسم دوتنا نبی علیہ السلام نا پورے عبد دین سے سیگی دین سسو ای کوئی نا کریم با مہان نا ہے عبد دین سے دا ای کوئی جی سقلبا ادوی تارگا دی دنیا دا سو شانتی چھوئی چھوئی جرہ مکی پھنگنے با این اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ دا پنچے لے لگا دی چھوئی چھوئی جرہ مکی ای کی پنچے دا شانتی کی شانتی ادوم پھنگا دا بنے با ادو گا ہے قیامت کے نمت تسو اللہ نا ہراو ادوگم لبا شانتی کی مفہم دا سہنگ دا دی۔ اس لئے میرے دوستو اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وہ دین جس کو لے کر آپ علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور جس دین میں ہر ایک کی دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کی لامحدود زندگی میں آخرت کے اعتبار سے پوری کامیابی رکھی ہے، وہ دین ہے کیا چیز جو اور جس دین کو آسان بنایا ہے تو اس وقت مشکل کیوں ہے؟ ہر ایک کے لیے مشکل بنا ہوا ہے۔ ہر وہ کہتا ہے کہ دین پر تو ہم نہیں چل سکتے، دین پر نہیں چل سکتے، حالانکہ دنیا کے جو کام ہم کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل
मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो आसान है। और दीन को अल्लाह के अल्लाह फरमा रहे हैं और नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है दीन आसान है, फिर भी आज हमें मुश्किल है। तो दीन आसान कैसे हो जाएगा? तो हर एक के लिए चलना आसान हो जाए और वो दुनिया के बारे में किस तरह फिक्र हो जाए। इसलिए समझने की चीज़ है कि दीन क्या है और दीन आसान कैसे होगा और दीन की क्या जिम्मेदारी है। Allah na ikoi de perek libat din nasi. Sige se lain na hairaga ikoi arai bagi posak tu udri basi kari maram gino. Hai bagi din sida mapuk phang ikoi amal tau mandri basi kari maram gino. हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे हाइदो भी है बदीन फायदे की लाई हर एक मुसलमान खुदिंग मत मिसक खुदिंग मत कोई न अमल तो बंगम गनेना अदो इकोई मपुम फाना तो बंगम दृश्य करी मरम गिनोबा हालांकि दुनिया का लेनी वो पोसक खुदिंग मत इकोई न दुनिया की तौरी में थम खुदिंग मत कसिदी दिन तक इसे हेना लूबो पोसक ने बा अदो वो दुनिया की थम सिदी इकोई लाई ने पंखुम पंगम में बा अदो का दिन से फायदे की लाई बने न हायरगा इकोई करी मरम गिनोबा दिन से द मपुम फाना पंखुम पंगम दृश्य। इसलिए मेरे दोस्तों दीन जो है वो चंद चीज़ों एक या दो चीज़ का नाम नहीं है। दीन जो है मजमूए आमाल का नाम है जिसमें जो है ना 5 शोबे उलमा ने बतलाए हैं और पूरे पांचों के पांचों शोबों में पूरी तरीके से चलने का कुरान का मुतालबा है, अल्लाह का मुतालबा हर ईमान वाले से। और जिसको कुरान यूँ कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो चाहे मर्द हो या औरतें हो, बारदार हो या गरीब हो, छोटे हो या बड़े हो, सबको कुरान खिताब करता है और सबसे मुतालबा करता है अपने इस्लाम में अपने दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ईमानियात हो तो कमाल के साथ, इबादतें हो तो कामिल हो, मामलात हो तो सही हो और मुआशरत हो तो पाकीज़ा हो और अखलाक हो तो आली हो। ये 5 शोबे उलमा ने कुरान और हदीस की रोशनी में इसको बयान किए हैं। ये पांचों शोबों को समझना और उस पर मेहनत करना, उसको समझना और उसको उलमा से मालूम कर करके हर शोबे पर मेहनत करके अपनी ज़िंदगी में उसको लाना, ये हमारी ज़िंदगी की जिम्मेदारी भी है और ये दीन का खुलासा है। अदुना दिन hari ko posak si walam kharap bibiri ba sige walam sidai koi mapung phana amal to ba ngam nangai hot na bidune asal din hari jaha ai na lei ba mapung khuding mak basida walam mangana ikoi gi punchan ko oi ai gi punchi pulap si karam ba jaha imaniyat oi ragati ikoi mapung phana ikoi gi amal to nangai hot na gada ibadat sisu mapung phana ikoi na hot na gada ba mapung phana to ngam nangai akhlaq to khwaidigi phaba khwaidigi wa ko sattu adugi ru ko gada ba muasharat na yamna singna aikoi chatpang ngam nangai hot na gada ba sigi potam manga sine ba sigi sida ne loi na ma ai punchi pulap se sida sujan ke ba se sigi si mapung phana aikoi amal to ngam nangai chatpang ngam nangai hot na gada। इसलिए मेरे दोस्तों ये पूरी मेहनत जो है इन चीज़ों को सीखने की है और इन चीज़ों को ज़िंदगियों में लाने की है। तबलीग खाली निकलने का नाम नहीं है, तबलीग खाली 4 महीने लगाने का नाम नहीं है। तबलीग तो नाम है, उसमें निकल करके इन चीज़ों को सीख करके अपनी जिम्मेदारियों समझ करके हर एक अपनी जिम्मेदारी समझे और समझ करके उसको पूरी करे, इसका नाम तबलीग है। अगर निकल रहा है 4 महीने पर 4 महीने जा रहा है, चिल्लों पर चिल्ले जा रहा है, लेकिन जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है, ये हेरा फेरी कर रहा है, ये तबलीग नहीं कर रहा है। अदुन सिगी पोलम मंगा सिल्ला नंगाई की तबक तने बे खोई न तौरी ब मेहनत मायम ai खोई न थोई ब चिल्ला मसुम सार महीना सिंचे थोई ब चिल्ला 4 महीना सिंचे थोप खक तनते बा बल्कि सिगी पोलम मंगा सि तम नंगाई की ने सिगी पोलम मंगा सि ai खोई न तम द्रब हई तरब अदुई तार गदि करिक तकांगते ब माना थोई ब सिंचे ai खोई न चिल्ला मसुम 4 महीना सि थोगा सि मपुम फान ai की पुंछि सि द चंग नंगाई की ने न होत न गदा बने बा अदु चंगई बा करिगु म चंगे ने अदुई तार गदि अदुई पोसक तु बुने ब तबलीग हायरी बसे करिगु म सिगी पोलम मंगा सि फंग द्रबा अदुई तार गदि करिक तकांग ब फंग होए। निकलना बेशक बहुत बड़ा अमल है, लेकिन खाली निकलना काफ़ी नहीं है। ये सूरज का निकलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर नूर के साथ रोशनी के साथ निकलता है तो बहुत मुफीद है, पूरी दुनिया को जगमगा देगा। लेकिन यही सूरज अगर बगैर रोशनी के निकले तो उसके निकलने से क्या फ़ायदा है। अदुना अखोई थोप खक्ताना अखोई काना बफम बनते
चुम्मी कोई थोक का दबने बा अदुर का थोक पा खत्ता नहीं कोई काना बा फंग मोए बा जैसा कि कोई नुमित थोक इधर सिकी नुमित थोई से थोक पा सीधा मांगा पीरी बा मांगान सीधा पूरी दुनिया से ngал हल ले बने सी कोई दे काना बा फंग ले करी को मा नुमित ती थोगा मम न थोगो एन mangan phangren adi targati kana bagi mahutta ekhoida adugum laba kharabi oir kane kana ba phang moi be ekhoida aduna thokpa khakta natte balke kana ba phang dori bisi thoba matung du sigi polam manga se lat na ngai ne na hot na ai gi punchi de sanghal lak badune ba asal kana bhai हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जब लोगों को निकाल रहे थे और मुलाकात की तश्कीलें कर करके जो है ना अल्लाह के रास्ते में निकाल रहे थे, तो उस वक्त के बड़े बड़े उलमा ने सुलहा ने उनसे पूछा कि हज़रत ये क्या लगा रखा है, अपने क्यों सबको निकाल रहे हो, आपकी एक आवाज़ है निकलो निकलो निकलो, क्या मकसूद है, क्यों निकाल रहे हो। तो हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त बात फरमाई थी, बल्कि कसम खाकर ये फरमाया था, मैं कसम खाता हूँ अल्लाह की कि मुझे इस निकालने से दुनिया का कोई मकसूद नहीं है और कोई मेरा मतमह नज़र नहीं है, न माल मकसूद है, न ओहदा मकसूद है, न हुकूमत मकसूद है, न मनसब मकसूद है और न रिया सुमअत मकसूद है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही चाहिए बात, और एक ही मेरे सामने मकसद है, इहयाउ जमीअ मा जा बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरा दीन मतीन लेकर आए हैं, हर आदाब से लेकर के और ईमानियत से लेकर के फराइज तक पूरा का पूरा दीन पूरी उम्मत में क़यामत तक के लिए हकीकत के साथ जिंदा हो जाए, ये मकसूद मेरा इस निकालने से। जब हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैहि सिना अहान तबलीगी जमात से हो रखो मतमदा म्यूई सिंची खुशामत तौरगा जमात के लंबी द थोक खिनगाई ने होत नरीबा तश्किल तौरगा मयाम सिंची पुथोक नगाई होत नरीगी मतम सिंची दा मियाम सिंची न हंगे मयाम द हंगे हजरत नहाक न सिगी थबुक सि तौरी सि करी मरम गिरो सिने अदद हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैहि ने कसम चारगा है अल्लाह की कसम चारगा है बसने आइने सिगी दिन सिगी म्योई सिंची दिन की मैं कही दा पुथोई ब तबलीग की मैं कही दे पुथोई सिगी कोई मकसद लेते आई इंसान ऐसा सी चाव जनगाई की नत्ते आई अमीर फंगनाई की नत्ते वहादा फंगनाई की नत्ते आई इज्जत अमसुम शोहरत की नत्ते खुदा की कसम अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पूरी जिंदगी दीनों मतीन पूरा का लाइब पोसक से सिगी सीधा हर एक मुसलमान खुद ही मकसी सीधा पूरे आई कोई सुन्नत की न खरगना फराइज होगा मपुंची चुप्पा जो अदुकुम लबा अल्लाह के रसूल की तरीका अल्लाह के अहकाम द मपुन फाना चक खिलंगा की तमक करे भाई बहुत तरीको मैं जी। इसलिए मेरे दोस्तों उस दीन के लिए मेहनत करना है और उस दीन को सीखना और समझना है, और उस दीन के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है बुनियाद वो ईमानियात है, और ईमानियात में सबसे बुनियादी चीज़ अल्लाह का ताल्लुक़ सही करना और अल्लाह को पहचानना, यह हमारा दीन का सबसे पहला मुतालबा है और हमारी ज़िंदगी का सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हम में से हर एक अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी में इस जिम्मेदारी को पूरी करे कि अपने ईमान को बनाए, अपने यकीन को सही करे और अपने अल्लाह से ताल्लुक़ को सही करे। अदुना अल्लाह ना थरकली ब दीन सिदा इकोई खंगदा बने ब ज्ञान तागदा बने ब इकोई मपुंफा ना इगी पुंची दे संग नगाई होत नगदा बने सिगी मनु देगी अहान बदा ईमानियात है बिसी सिदा मपुंफा ना इकोई ईमानियात सिदा दाखिल होइगदा बने ब चंचल लगदा बने ब जितने भी ईमानियात का मरी लेना वो सब खुद ही मग से इकोई मपुंफा ना अमल तो नगाई होत नगदा बने ब हर एक मुसलमान खुद ही मग अहान बदा सिगी ईमानियात है रि ब से लोई नमक की दरकार हुई ब ने और उसी ईमान का सबसे पहला कलमा यही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये ईमान का कलमा है, ये तक़वे का कलमा है, ये जो है ना तौहीद का कलमा है। इस कलमे को सही करना, इस पर मेहनत करके अंदर में यकीन बनाना। क्या यकीन बनाना? कि अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं है और किसी के पास कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह है और सब कुछ अल्लाह ही का है। दुना सिगी अहान दगी ईमानियत सिगी कोई दिगी दरकार होई बा अहान बजुस्सी करिलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिगी जुस्से ने सिद्दीन की तौहीद की एक जुस मखल अमन है, जुस अमन है सिदा ने अहान बद अल्लाह ना तागले बसे ला इलाहा इल्लल्लाह सिगी अहान में मतलब लाख बद मतिक चाब मपू कना अमत लैते हायर बने इल्लल्लाह अल्लाह खतने
सिगी असेंग मतलब ती जितने भी अखोई ने अल्लाह ने थारकी अहकाम खुद मकसी अल्लाह की मतुंग इन लगा अल्लाह के अहकाम की मतुंग इन नचत कनी आई पूछे से अदुका जो अल्लाह ने पाम दबको से खुद मकदो आई थदो कने हायरी में बसी अहाम बजुस की मतलब। इसलिए ईमानियात में सबसे से फरमा आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफाती, ईमान नाम अल्लाह पर जैसा कि वो अपनी ज़ात व सिफात में है ऐसा अंदर में दिल में यकीन आ जाए। इस दिल की दुनिया में और दिल भीतर से अल्लाह के माँ सिवा जितना जो कुछ है जिस शक्ल में है उन सब का इनकार हो। कोई रोजी नहीं देने वाला, कोई इज्जत नहीं देने वाला, कोई जलील नहीं करने वाला, कोई काम बनाने वाला नहीं, कोई काम बिगाड़ने वाला नहीं, कोई हालात बनाने वाला नहीं, कोई बीमार करने वाला नहीं, कोई तंदुरुस्ती करने वाला नहीं, वो किसी के हाथ में कुछ नहीं है। सब मखलूक है, न नफा उनके हाथ में है, न नुकसान उनके हाथ में है, न जिलाना उनके हाथ में है, सब मखलूक है। करने वाली जात एक अल्लाह वहदहु ला शरीक लह। कलिमा सिगी तकाजा से मुहतरम हजरा तसेंग मक्की होइना जितने भी दुनिया से द ओए इव थम खुदिंग मक असे सी इंसान में बन ओहेन बनते तौरी ब खुदिंग मक इंसान में बन तौ बनते लाई ब खुदिंग मक सी इंसान में बेगी मखुत लाई बनते अदुग ओहेन लिब खुदिंग मक असी अल्लाह ना ओहेन बने हाय बसी के असेंग बसी आई थमई मनुंग द थम। और जितना जो कुछ है मिसाल के तौर पर जर्रे से लेकर पहाड़ तक, चींटी से लेकर जिब्राइल अमीन तक, फर्श से लेकर अर्श तक, कतरे से लेकर ठाटे मारते समंदर तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, इन सब की नफी हो, इन सब का इनकार हो कि ये सब मखलूक है। ला यनफअ वला यदुर, ला युइज़्ज़ु वला युज़िल, ला युहयी वला युमीत, किसी के कब्जे में कुछ नहीं है, सब कुछ एक अल्लाह वहदहु ला शरीक लह के कब्जे में। इसका यकीन दिल भीतर उतर जाए और उसका यकीन दिल के अंदर में उतर जाए, ये ईमानियात का मतलूब है। और इस ईमान को सीखना है, इस ईमान को बनाना है। जिसके अंदर का ईमान बन जाएगा वो अपने कारोबार में सही चलेगा, जिसके अंदर का यकीन बनेगा वो अपनी ज़मीनों के मसले में सही चलेगा, जिसके अंदर का यकीन बनेगा वो अपने मामलात में सही चलेगा, जिसके अंदर का यकीन बनेगा वो अपनी इबादत में सही होगा, जिसके अंदर का यकीन बनेगा वो अपनी मुआशरत में सही चलेगा, जिसके अंदर का ईमान और यकीन बनेगा उसके अखलाक भी दुरुस्त होंगे। अदुना जितना अखोई दुनिया से द लई पोसक खुदिंग मसादगिना असौबा जितना लई मथक होगा जमीन दगिना आसमान होगी मरकता ओहेल पोसक खुदिंग मकसे इंसान ना ओहेल बनते महोई सिंसिदे एक मखलूक अमनी ओहेल बगी जात कना सुनना के अल्लाह अम खतंग लईरी सिगी थाजम आइगी थमोई मनुंग मपुंग फाना फजना थम्बा करिगो मसिगी यकीन आइगी थमोई मनुंग लईरबा ओहेल लिबा पोसक खुदिंग मक अल्लाह हो ओहेल बनी कना अमतन ओहेल बनते हाय सिगी थाजम थम्बा अदुई तारगदे आइना कुंसी लेत मतमदा आइना कारोबारी तौ मतमदा आइना लौ सिगो बगी थबुक तौ मतमदा आइना तो पोसक अमा थबुक अमा तौ मतमदा अदुगी दु लोइना मक अल्लाह ताला ने सुबहनगनी अल्लाह ताला ने लहन बिगने बा सिगी थाजबा तसेन मके आई थमोई मनुंग थम्बा मसिमु करी कव ईमान कवेबा सिगी ईमान यसि चुमगदी जितना लाइबा मखाद लाकदुरिबा पोसक खुदिंग मक अल्लाह ताला ने सुबहन बिगने। ये दीन हम में से हर एक से इस ईमान का मुतालबा कर रहा है और इसको बनाने के लिए अल्लाह ने ये हमको मुख्तसर सी ज़िंदगी दी है और ये हमारी ज़िंदगी की सबसे पहली जिम्मेदारी है। जो इस जिम्मेदारी को पूरा करके इस ईमान को बनाएगा, इस यकीन को बनाएगा, उस पर अल्लाह जल्ल जलालुहु वालहु उसकी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाएंगे और उसकी आखिरत भी अच्छी से अच्छी बनाएंगे। अदुना अखोई द पेरे इब सिगी दिन गे तकाजा से सिदा मपुंग फाना अखोई गे अमल तौना इ होत ना कदा बने करिगुम अखोई ने सिदा मपुंग फाना अमल तौबं नम्मबा अदुई तारगद अखोई द अफक पुंसी असेंग पुंसी एदो दुनिया दसु अल्लाह ताला ना बिबी गनी अदुगा आखिरत दसु अदुगुम लबा अफम मफम असेंग मफम दु दै पे थम्बी गने।
یہ اللہ کا حق ہے ہم سب پر. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پوچھا یا معاذ تدری ماذا حق اللہ، اے معاذ تم جانتے ہو اللہ کا کیا حق ہے اپنے بندوں پر؟ کہ اللہ و رسول عالم، مجھے نہیں معلوم، اللہ اس کے رسول کو معلوم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے ان تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. میرے دوستو یہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگیاں اللہ کی اطاعت والی اور اللہ کی عبادت والی، اللہ کی بندگی والی بنائے. یہ سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے اور یہ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے ہم پر. aduna si Allah ki hak ne din ki hak ne chidai koi mapung phana tu chat na ngai hot na kada ne. Hazrat Muaz radhiyallahu ta'ala anhu da Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam na hak nge ba e Muaz din hak Allah ki hak hai si kari no din ki hak hai se na hak kham prasine ba. Hazrat Muaz na hai ba sumna khake Allah amasung maha ke Rasul khakta na he na khangi sin adugi matamadu da hai ba Allah ki hak hai badi adugum laba Allah na tharakli ba posak khudik makada mapung phana pun chilen ba si aham ba hak ne ba maha ke amal ibadat tauba Allah ki sat shirk tauba ba maha ka manana atopa mapu amu ho tham da ba si aham ba adugum laba din gi aham ba si din si ki hak ni sida aikhoi na mapung phana punchi lelaba adui tar gadi aikhoi duniya da su aikhoi kana ba phangani aduga akhirat da su kana phangani. تو ہماری ذمہ داری ہر وقت اس کو سوچنا، اس کو سمجھنا، اس کی فکر میں رہنا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ میری زندگی کا سب سے پہلی ذمہ داری، سب سے پہلا کام ہے. ہر وقت میں اللہ کو راضی رکھنا اور اللہ کو خوش کرنا. اس لیے اللہ کی رضا جو ہے وہ اسباب میں نہیں ہے، اللہ کی رضا چیزوں میں نہیں ہے، اللہ کی رضا اس کی اطاعت میں ہے اور اللہ کی رضا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے تعلیمات میں ہے. اس لیے ہمارا دین کا تقاضا ہے اور ہماری دنیا کی زندگی کی ذمہ داری ہے. Aduna muhtaram hazara si ekhoi gi jo Allah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam na ekhoi da taklam le ba posak si ahan ba din si ekhoi gi imaniyat ta jitne bhi lai ba posak khudik ma kasid amal ta si ahan ba ekhoi gi zimmedari le si ki zimmedari se Allah ki marzi ki matung in na pangthok pane ba aikhoi gi Allah na aikhoi de yahan na ngai gi hot na kada bane ba Allah na ya gada ri ko sakse asbab tanatte ba dunya da lai ba asbab khudik ma kasi sigi sa Allah na razi koi gada banatte ba balki Allah na aikhoi bi ya gada ri ba Allah na aikhoi ko haram ba dori ba si adukum laba imaniyat tu da Allah ke Rasul na aikhoi da purekli ba din se sida mapung phana amal tawra ba matung du da ne ba Allah na aikhoi bu razi koi gada ri ba si Allah na aikhoi bi ya gada ri ba si ahan ba aikhoi gi zimmedari ne ba amasung din gi hak ہر ایک کا انفرادی حال کا بننا یا بگڑنا یا اجتماعی حالات کا بننا یا بگڑنا، ان سب کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی اور اس کی ناراضگی پر ہے. اگر ہم نے اپنے اللہ کو اجتماعی طور پر جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اور انفرادی طور پر جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کو اگر پوری کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کا انفرادی حال بھی بنائے گا اور اجتماعی حالات بھی بنائیں گے. اور اگر ہم نے ذمہ داری پوری نہیں کیا اور اسباب میں لگے رہے، چاہے اسباب بڑھ جائیں گے، اسباب کی کثرت ہو جائے گی لیکن حالات نہیں گزریں گے، حالات نہیں درست ہوں گے. aduna jitne bi ai ki punchi da la kador ba ai ki infiradi ki punchi hoy gera ijtimai ki punchi hoy gera infiradi ai ki itom ta na tawgada ba isana tawgada ba adum laba posak singdo ijtimai jitna ai khoin lai ba muamalat muasharat sida bulak kunna tawri ba thabuk khudik makadune ba sigi sida kari gumba ai khoina Allah ku ya na ngai hot na praba adu targadi jaha ai na lai ba halatu ki matung inna ai sibu asan pe hen bigani lehen bigani ba yam na phajana tham bigani ba kari gumba ai khoina adugum laba infiradi amasung ijtimai mafam khudik makta ai halat chi chum na ngai gi na hot na draba ai khoina amal tawdraba Allah na pirakli ba ahkam nabi na tharli ba din sida adu targadi har halat khudik makta ai khoi ki halat chi chum chum ba ngamoy. آپ علیہ السلام نے تشریف لایا تو حالات سارے بگڑے ہوئے تھے. جب آپ ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے وہاں بھی حالات بگڑے ہوئے تھے، حالات صحیح نہیں ہو رہے تھے.
आपने जाकर एक खुतबा दिया और उस खुतबे में एक बात फरमाई और इतनी जामे बात फरमाई और वो क़यामत तक के लिए हम सब के लिए उसमें रहबरी है। और ये फरमाया मन अस्लह मा बैनहु व बैन अल्लाह अस्लह अल्लाहु मा बैनहु व बैन खल्क़ी, जो कोई भी अपने और अपने अल्लाह के दरमियान के मामले को ठीक कर देगा, ईमान का मामला, इबादत का मामला, इताअत वाला मामला, उसको राज़ी करने का मामला, जो कोई भी सही कर देगा तो अल्लाह जल्ल जलालुहु मिन वालहु उसके और उसके मखलूक के दरमियान के मामले को ठीक कर देगा। यह ऐसा गुर है और ऐसा सिर है और ऐसा राज है, हर एक के अपने हालात के बनाने का, इज्तिमाई हो इंफरादी, उसके बगैर हालात बन ही नहीं सकते हैं और उसके हालात जो है हालात सही हो ही नहीं सकते हैं। उसका एक ही रास्ता है, हम अपने अल्लाह के दरमियान के मामले को सही कर लें। कौन सी लाइन का? इताअत का लाइन का, फरमाबरदारी के लाइन का, इबादत का लाइन का, उसके साथ दुआ का लाइन का, इसको सही कर ले तो इंशाअल्लाह हमारे और मखलूक के दरमियान में, चाहे बाप और बेटे का मसला हो, शोहर और बीवी का मसला हो, पड़ोसी का मसला हो, महकूम और हाकिम का मसला हो, ये सारे मसले अल्लाह ठीक कर देंगे अगर हमारा अपने अल्लाह का मामला ठीक हो गया। अदुल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया का अहान तलाक मतलब दुनिया के हालात से चुंबनत टेबल लोई न मसा के हालत तले बले से पूरे एक किस्म की खराबी तले बले से जिस वक्त नबी ला अब मतूद ने बा हालात से लोई न ठीक हो अब मतूद दीन इस्लाम से एक हो गए और खरीब से एक के हालात से चुम्मगल ला खरीब से जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सहाबाई के नाम से रहा है ए तुम लब म्यूसी नहा न अमसु नहा के अल्लाह का लैनरी ब मरक सिगी मनुष्य के हालात से न कोई न ठीक हो हल्लबा चुभल लबा अदु तार जितने भी नंगी न पुंसी ला कदो के हालात खुद मग से अल्लाह ताला न लोई न मग चुभन गने है से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सहाबाई के नाम से ने बहे दो खरीब से सहाबाई के नाम से ना महा का अमसु अल्लाह का लैनरी ब मरक सिगी मरी से सिगी हालात से कोई मत सहाबाई के नाम से चुभल लगा कोई दे खनन कर बनेबा जितना आई कोई सुकरी को चुभल लगा अदु तारगति अल्लाह ताला ना कोई के हालात खुद में असी चुभन गनेबा जितना भी कोई के युम की मसला वगैरह आई के इमु मन के मसला वगैरह कई लइकाई के मसला वगैरह हर लाइन के मसला खुद में असी लोई न मत अल्लाह ताला ना चुभन गनी जब आई कोई ना अल्लाह अमस आई का लैनरी ब मरी से चुम के बतारगति। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये हमारी ज़िंदगी की जिम्मेदारियां हैं कि अपने ईमान को बनाए, अपने दीन को सीखे, अपने अल्लाह के ताल्लुक़ को सही करे और अपने अल्लाह की बंदगी करे। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर अपनी इबादत को फ़र्ज़ किया है, उसमें अल्लाह ने फ़राइज़ तय किए हैं और इबादत में जैसे नमाज है यह अल्लाह का फरीज़ा है, रोज़ा है ये अल्लाह का फरीज़ा है, ज़कात है मालदारों पर अल्लाह का फरीज़ा है, हज है ये अल्लाह का फरीज़ा है, ये फ़राइज़ है इबादत की शक्ल में जो अल्लाह ने अपने बंदों को डाले हैं। अगर इस इबादत को सही करेंगे तो इबादत के रास्ते से अल्लाह का ताल्लुक़ बढ़ेगा और जब अल्लाह से ताल्लुक़ बढ़ेगा तो वहाँ से इनाम होगा, वहाँ से इकराम होगा, वहाँ से मेहरबानियाँ होगी और अल्लाह की तरफ से इनामात होंगे। अदुना कोई ना अल्लाह का लैनरी ब मरी से करम में न ब ठीक तो बदोरी वैसे जितने भी अल्लाह का हरी व अहकाम खुद ही मत से अमल तो ना होत न बदोरे बा जो हज फर्ज होई वैसे सी मफूम फान होत न बा नमाज कोई की मत हर एक मुसलमान खुद ही मत सोंद में याद रबा अदुम लब नमाज से कोई ना ठीक तो रबा रोजा ठीक तो रबा जितने भी फरई व दीन की बातें खुद ही मत से कोई ने सिगी से ठीक कोई भी रबा अदु तारगति सिगी जरिया देके अल्लाह की इबादत सिगी से मफूम फल लबा अदु तारगति अल्लाह की मैं कही देगी कोई दे इकराम फंगनी अदु कोई दे एहसान फंगनी कोई दे मतिक चाबा इनाम अल्लाह ने पिफम थोक बदु कोई दे मफूम फाना फंगने करी कुम कोई ने सिगी लाइन से सिगी अमल इबादत जितने भी ले रिबा अल्लाह ने थरक इबा नबी की जरिया देगी से कोई ने चुम दबता रबा अदु तारगति कोई कई मुंदा कोई के हालात अम भो सही होई बगम होई। और इबादत में नमाज का दर्जा बहुत बड़ा है, बल्कि हदीस में फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन मन अकामहा अकामद्दीन व मन तरकहा फक़द हदमद्दीन। फरमाया जिसने नमाज को कायम किया, नमाज को सही किया, उसने पूरे दीन को कायम कर दिया और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने पूरे दीन को ढा दिया। नमाज का बहुत बड़ा मर्तबा है इस्लाम में, इसलिए अपनी ज़िंदगियों में नमाज को सीखना, नमाज को सही करना और नमाज को अदा करना और नमाज की दावत देना और नमाज को जिंदा करना ये हमारी सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमारा काम है।
aduna puri ibadat sigi manu dagi namaz hai se kwaiti manu oiba posak ne karigumba aikhoina sigi namaz se chum hakraba adui targadi atopa amal sing sisu Allah taala na chumhan bigane kai aduna hadis fakta lai karina jis karam ko mami amala namaz se bo qaim tawra hazana mabum phana sola aduga atopa mi sing sisu sona ngai hot na halla se qaim tawbane adui targadi Allah taala na puri din se qaim hen bigane Allah Taala na posak khuding magloi na magchumhan bigane ba kari kumot ay koy na namaz se kaim tawdra ba atoy taragati loi na magdin khuding magloi na magamu hobo kaim tawdra amu hobo kre aduna ay koy gi punsida sigi namaz hai se khwaiti gi maru oi bani ai gi punsi jab bi ai na tawri ba thabu khuding magta jab bi namaz ki matam lakpa matam da ay koy namaz se bu phajana mapum phana so na ai hot na da इसलिए मेरे दोस्तों नमाज पर मेहनत की ज़रूरत है, नमाज को सीखने की ज़रूरत है। आज तो हमने बचपन में जो नमाज सीखी आज 55 तक हमारी नमाज चल रही है, इसलिए नमाज का असर भी जाहिर नहीं हो रहा है न हमारी ज़ातों पर न हमारे माहौल में न हमारे घरों में। इसलिए नमाज को फ़ज़ाइल के लाइन से भी सीखना है, मसाइल के लाइन से भी सही करना है। फ़ज़ाइल तो हमें तबलीग निसाब में फ़ज़ाइल नमाज को पढ़ने के रास्ते से पता चलेगा कि उस एक एक अमल करने पर अल्लाह क्या देते हैं, लेकिन नमाज मसाइल के तरीके से कैसे सही हो इसके लिए हमें उलमा की जरूरत पड़ेगी। उलमा के पास बैठना, उलमा के पास जाना, एहतराम करना, इकराम करना और उनसे पूछ करके अपनी नमाज को सही करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। उलमा बहुत बड़ी नेमत है, जैसे नबियों की बिअसत नेमत है, ऐसे इस उम्मत के लिए इस उम्मत में उलमा का वजूद भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है और उलमा का वजूद ये रहमत और नेमत है इस उम्मत के लिए कि उनका दीन की सेहत और इनके दीन का ठीक होना और इनकी दुनिया का महफूज होना, जो उलमा से ताल्लुक़ कायम करने पर, उलमा से पूछ कर चलने पर इनकी दुनिया भी महफूज होगी, उनका दिन भी महफूज होगा। aduna aikhoina namaz si chum nagai gi hot na gada bane aikhoina angang oi ringai da tam khiba namaz se sigi sina hujik phoba dum cholaga lai bane ai gi namaz si kari oi ri bano aikhoina hujik phoba dhyan taw banatte aduna masail gi line da oi gera fazail gi line da oi gera namaz se koi chum nagai gi tam nagai gi hot na gada bane ba fazail gi line da jo tabligh de sakli ba jamaat da thoi ba hazarat sing do namaz sun mo matam da si phangani namaz thadu mo matam da si koi da awam tar kan hai bi si koi da tam bi ba fazail gi line मसाइल के लाइन का हर एक खुदिक मत सिंग से एक कोई तपक थोक बनेगा मसाइल के लाइन का तब बगी दमकता एक कोई उलमा की दरकार में रखनेगा उलमा सिंग की मनात से दसक लगा एक कोई की लाइन में इमाम साहब सिंग से दसक लगा एक कोई नमाज की मसाइल से तब नगा ये होत लगा बनेगा सिर्फ उलमा है बस दुनिया से दा रहमत अमनी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस ने मखोई से लैबगी अखोई रहबरी अमसुम रहमनवाई अमसुम अखोई अदुम लबा पुंसी लेप मतम दम अचो मतेंग मुहेली बने उलमा है बसे अदुना मखोई द खुशामत तौरगा मखोई की मनाक चलगा नमाज की मसाइल से अखोई तमगा अदुम लबा मपुम फाबा नमाज तो ओइनगा ये अखोई होत नगदा बने। इसलिए मेरे दोस्तों जहाँ ये जिम्मेदारी है इबादत की लाइन को सही करना, ऐसे ही हमारी जिम्मेदारी हमारे मामला सही हो, लेन देन सही हो, उसमें हराम ना आए, नाजायज चीज़ें ना आए। इसलिए कि मेरे दोस्तों जैसे सड़ा हुआ खाना खाने से बदन के अंदर में बीमारियां पैदा हो जाती है, ऐसे ही जब हराम खाना खाया जाता है या हराम कमाई के रास्ते से दुनिया आती है तो उसके रास्ते जो खाना खुद खाते हैं या अपने बच्चे खाते हैं या अपनी बीवियों को खिलाते हैं उसमें भी इसमें रूहानी एतबार से बिगाड़ पैदा होता है और उसके अंदर गलत चीज़ें अंदर में पैदा होती है, गुनाह की तरफ तबीयतें चलती है, नाफरमान बन जाते हैं। वो औलादे जो है ना नाफरमान हराम खिलाया जाता है, गलत खिलाया जाता है, वो जो फरमाबरदार नहीं बनते, न अल्लाह के फरमाबरदार बनते हैं न वालिदैन के फरमाबरदार बनते हैं, वो सबके सब आसी और नाफरमान बनते हैं। इसलिए अपने मामलात की लाइन को सही करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है और हमारा दीन का तकाजा है। असल एकोइना इबादत की लाइन दा जो चुम गदौरी बसी से एकोई अचुम जिम्मेदारी अमने जो नमाज की लाइन दे एकोइना चुम नगाई होत नहीं बसी से अचुम जिम्मेदारी अमने असुम तो दना आईगी मामलात की लाइन दसो एकोई चुम नगाई ये होत नगदा बने
जैसा कि आई हक्चांग सिदा फत्तबा अमसुंग अपुंग पोषक कसी थजल लगती आई हक्चांग सिदा अमांग बोइरी अकाई को मैं अमांग बोइरी असुमाय आई पुंसी सिदा दिन से कोई न तबहुद्रबा मामला से करीनो कर्मी न तौगद मनो से कोई न खमहुद्रबा हराम की लाइन देगी कमाई तौरबा हराम की लाइन देगी कोई न तंजल लबा हराम की लाइन से कोई न चजल लबा थचल लबा अतुई तारगदी आई की रूहानियत बारता आई की हक्चांग देगी ठोका कदोरिबा अमल खुदी मगसे लोइना फत्तबा ओइरकनेबा आइना अफबा तौनिंगबसे आई की थमोय मनुंग इचांग आरोइबा फत्तबगी फत्तबा ngakta tauningaganeba karigumba aina aigi chai susingda haram ki mal kamai aigi oirabani aigi chada su ai imuman su pisarakani pitharakani adugi zariya dagi aigi imuman su aphabo oiroi aigi chai su aphabo oiroi makhoina tawriba thabak khudi pakadu su aphaba aphabo oiroi haram ki mal si sajal lagati ai adugum laba fattabagi thabuk tauningbagi jasba aigi thamoi mante yorakaneba sigi sina dunya da su paidigi fattabo oirakani kharabi oirakaneba aduga akhirat da su adugidu suksoi soidara mati kharabi oirabda baneba aduna ai koi sigi line sisu chumbasi ai ki मामलात की लाइन से न चुनबसी सो आई अचंबो जिम्मेदारी अम्मने ऐसे ही मेरे दोस्तों मुआशरत का दीन है। मैं मुख्तसर इशारे करता हूँ, वक्त नहीं है इसलिए कि तर्जुमा के साथ बहुत सारा वक्त चला जाता है। इशारे है इसलिए सारे मुख्तसर बातें हैं, इसको हमें अपने समझना है और उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। इसलिए एक तरह ईमानियात का दीन है, एक तरह इबादत के लाइन का दीन है, ये दीन का तकाजा है। ऐसे मामलात के लाइन का दीन है, ये सारे शोबे दीन के हैं और ये सब ज़रूरी है और सब पर चलना ज़रूरी है, उसी पर अल्लाह की तरफ से फैसले होंगे। ऐसे मुआशरत का दीन है, एक दूसरे का हुकूक अदा करना, एक दूसरे का हक अदा करना। बच्चों पर माँ बाप के क्या हक है, माँ बाप पर बच्चों के क्या हक है, शोहर पर बीवी के क्या हक है, बीवी पर शोहर के क्या हक है, पड़ोसियों के क्या हुकूक है, बड़ों के क्या हुकूक है, छोटों को क्या हुकूक है, हर एक के साथ क्या मामला होना चाहिए। फिर हमारे बिरादराने वतन के साथ हमारा क्या मामला होना चाहिए, उनके साथ क्या इंसाफ हो और उन लोगों के साथ क्या एहसान हो। ये सारा मुआशरत का दीन है। जब मुआशरत का दीन होता है ना तो मोहब्बतें पैदा होती है, अंदर से अदावतें ख़त्म होती है, अंदर से दुश्मनियाँ ख़त्म होती है। जब एक दूसरे का हक अदा किया जाता है, एक दूसरे के साथ एहसान किया जाता है, एक दूसरे के इंसाफ के साथ मामला किया जाता है तो अंदर की लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं, मोहब्बतें पैदा होती है और जीने का मजा आता है और उसकी दुनिया की जिंदगी उसकी जन्नत नशा बन जाती है। इसलिए मुआशरत का दीन, इसको समझना, इसको सीखना, उसको मालूम करना तौबा के रास्ते से, ये भी हमारी जिम्मेदारी है और उसी के लिए अल्लाह ने ये मुख्तसर से जिंदगी अमानत बनाकर दी है। अखोई इबादत के अखोई चुंखरब मतुंगदा मामलात से चुंब बहुत दरकार ने से मामलात चुंब मतुंग से मक्का माशरात से बहुत दरकार ने अखोई माशरात की मतंग से अखोई खंबा बहुत जरूरी है। माशरात है बदी आइना लेलिबा पुंसी आइना लेलिबा मफंदुदा आइगी इमुंग मंदुदा आइगी करविले कायदुदा बहोय सिंसिगी हक से करी नो हाइबे से खंबदुलेबा आइगी चागा करी हक नो आइगी इनाउसिगा करी हक नो आइगी इमुंग मंदुगा करी हक नो आइगी करविले काय सिंसिगा करी हक नो आइगा लेलिबा आइगी इमानबा सिंसिगा आइगा लोइनलिबा मिसन सिंसिगा करी हक नो हाइबे से खंब दरकार ने करीगुंबा अम्मना अम्मगी हक से पांथोकनरबा अतोय तारगदी मामलात माशरत हर एक खुदी मत आइबे फजन मुंसी चानना लैगनेबा करीगुंबा हर एक अम्मना के हक से पांथोकनद्रबा अदुई तारगदी आइना लैरिबा मफमदुदा अम्म भुबन सिचाना बाहाइबसे अम्म भुबन लहेल्लो एबा अदुना अखोइना खंबा ngam अखोइना कया यामना अम्मना अम्मगी हक से कया यामना पांथोकनबसे हाइबसे खंबा ngam अदुगा कया यामना नुसिनना लैबन हाइबसे से अखोइना खंबा ngambane नुसिनदरि से करी मरम गिनो अम्मना अम्मगी हक से अखोइना खंदबगिनेबा तब तकारो एबा खंगगा पांथोकनबोय तारबा अदुई तारगदी दुनिया ओइरगसु अल्लाह ताला ना जन्नत की नुंगाइबद दुनिया तक होना अल्लाह ताला ना फंगन बिगने। एक दूसरे पर एहसान करने वाले बन गए तो किस तरीके से उनकी जिंदगी मोहब्बत वाली बन गई, इकराम वाली बन गई, हमदर्दी वाली बन गई। कोई अपने को बेगाना नहीं समझता था, हर एक दूसरे का हमदर्द समझता था और मोहब्बत की जिंदा हो जाती है। तो मुआशरत के दीन को सीखना है और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बनानी है, ये हमसे मुतालबा है। मदीना मुनव्वरा की एक माहौल हान लेरम लिबा माहौल दुगी मतुगिंदा हाइबेदि मोइना अम्मना अम्मगी हक से करी मसक खंगम बनतेबा
अदुबु जब अल्लाह के रसूल ना मखोइना खंगल्लबा मतुंदा मखोइना ताबा मतुंदा मखोइना तम्मा मतुंदा अम्मना अम्मा के हक से करीनो खंगबा मतुंदगी मखोइ मसेन पंथोकनरबा मतुंदुदनेबा अफबा मखोइ सिंचे ओइरा अद अखोइ बबुसिगी दिनचे वलीबसे से अखोइना लोइनमक उरबा गाक्तने। और पांचवी चीज मेरे दोस्तों, उसी दीन का मुतालबा और दीन के अंदर में अखलाकियात है। अखलाकियात का मतलब ये है कि दिल के रोग सही हो जाए और दिल के अंदर की जो गुनाह है वो ख़त्म हो जाए। एक तो ज़ाहिरी गुनाह है, जैसे जो है ज़िना है, चोरी है और जो है शराब पीना है, ये सारे ज़ाहिरी गुनाह है। ऐसे अंदर के गुनाह है, वो क्या है, कुफ्र है, शिर्क है, रिया है और हसद है, कीड़ा है, कपट है, दुनिया की मोहब्बत है और एक दूसरे को जो है ना अदावतें हैं, गिबतें हैं, ये सारे अंदर की चीज़ें हैं, उसको दूर करना ज़रूरी है। जैसे ज़ाहिरी गुनाहों से बचना ज़रूरी है, ऐसे अंदर के गुनाह से बचना ज़रूरी है। ये भी हमसे मुतालबा है कि हमारे दिल साफ सुथरे हो, न उसमें कीना हो, न हसद हो, न जलन हो और न किसी के साथ दुश्मनी हो, न बुग़्ज़ हो, न क़त्अ ताल्लुक़ हो, बल्कि हुस्न खुलुक़ हो, जिसको अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जिसके अखलाक अच्छे होंगे कल क़यामत के दिन उसका तराजू वज़नी होगा। सबसे पहले उसके तराजू में हुस्न खुलुक़ रखा जाएगा। आपसे पूछा, आपने फरमाया हुस्न अखलाक क्या है? फरमाया 3 हुस्न अखलाक है, अगर जो इसकी पाबंदी कर लेगा तो अल्लाह ताला उसका तराजू वज़नी होगा। फरमाया क्या है? फरमाया तसिलु मन क़तअक व तअफु अम्मन ज़लमक व अहसिन इला मन असा इलैक। जो तुझसे ताल्लुक तोड़े उससे ताल्लुक जोड़ और जो तुझ पर ज्यादती करे उसको माफ कर दे। जो तेरे साथ बुरा मामला करे उसके साथ अच्छा मामला कर। ये अच्छे अखलाक है, ये जिंदगी का सरमाया है और ये हमारे अखलाक की आला सतह है। ये है जिसको हमारी जिंदगी में लाना है और उसकी मेहनत करनी है। ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अदु पोलम मंगा सिंदगी मरुदगी अखलाकियात हाइबिसिसु बहुत जरूरी अमसुं अखोइगी दमक्तदि यामना दरकार ओइबा पोसक खुदिंग मक्कन अखलाकियात हाइबिसि ख्वाइदिगी मरु ओइबा पोसक ने जैसा कि अखोइगी अफोकबदा लैलिबा गुना मयाम सिंसे अचुचुबा गुना लैले हुरा चिथि तौबा जिना तौबा अतोतोबा गुना मयाम अमा अचुचुबा लैलिबा जो फोंगना लैलिबा गुना सिंसे सिसिंसिदैसु मक्थुपा बहुत जरूरी है, दरकार ने। अदुगा सिंदनत आइगी थमोइगी फत्तबा मयाम सिंसे सिदैगिसु पाक साप तौबसे से अखोइगी अचुबा जिम्मेदारी अमने। थमोइदा लाइबा गुना सिंग अखोइना लोइनमक खंगबा गाक्तनि करम बकाया यामना सतीना लाकपा गैस मीगी फत्तबा मयाम अमा हसद बुग़्ज़ अदावत सि लोइनमक आइगी थमोइ मनुदे हौरकपा गाक्तनि आई मीगी मिहौबा चाकपा नुंगाइतबा सि लोइनमक सि थमोइगिनेबा सि अचुंबा गुना मखल अमनेबा सिदैगिसु चुंबा दरकार ओइबा करिगुंबा सिगिसि चुंबदबा तारगदि आइगी ज़ाहिरीसु अल्लाह ताला ना चुंहल्लोइ। अदुना अहानबदा सिगिसि बहुत ज्यादा दरकार ने अखोइना चुंबा दरकार ओइरिबस। अदु जो हय क़यामत के निमित्तसु आइगे अमाल सुसि ओनबा मतमदा आइगे अफबा अखलाक असेंबा अखलाक से सिगिसिने हेन लुभनगने आइगे अमालमा आइना थमोइ सेंगा तौखरेने करिता अमत लैतबिदा अदुगी थमोइ सेंबा अखलाक के साथ अदुगी अमल दुन हेन लुभनगने हय ओनबा मतम। अदुना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायगा अफबा अखलाक है मुसिकरी अचुंबा अखलाक है मुसिकरी सिक्स पोलम अहुम न सेम बने कनाकुंबा में अमना नमुंद कते तालुक तौरेने नमुंद या नरकरेने खत्तर ए चैनरेने नहक न या नंगाई के होत नगद बने चे अहंबा अनि सुबदना कनाकुंबा में अमना नमुंद ज्यादती अहेत तौरेने अदुई तारगति नहक न महक सिबु माफ तौबी अहुम सुबसिना नमुंद फत्तबा तौरेने अदुई तारगति नहक न अफबा थबुक सितौ नंगाई के होत नगद सिगी पोलम अहुम सिनेबा करिकुंबा सिगी पोलम अहुम से आइगी थमोइ मनुंद चंगक नंगाई होत नरगा चंगक खबा अदुई तारगति क़यामत के निमित्त आइगी अमाल से ओनबा मतमदा आइगी अमाल से ख्वाइदिगी अरुंबा ओइने ओहेनगने। आपने फरमाया ला तकूनु इम्मा, आपने फरमाया मेरे सहाबा इम्मा मत बनो। तो सहाबा ने फरमाया हुजूर इम्मा का क्या मतलब है? तो आपने फरमाया ये कहना वो अच्छे तो हम अच्छे, वो बुरे तो हम बुरे।
फरमाया ये हमारे इस्लामी तालीमात नहीं है। जैसे आज हम समझते हैं भाई वो अच्छा करेंगे तो हम भी अच्छा करेंगे, अगर वो हमारे साथ बुरा करेंगे तो हम क्या को अच्छा करेंगे, ये आज आम तौर पर माहौल है और ये इस्लामी तालीमात नहीं है। फरमाया नहीं, अगर वो हमसे साथ बुरा मामला करेंगे हम उनसे अच्छा मामला करेंगे। ये है आसे इलामन आसाइले, ये हमारी दीनी मेहनत है और ये दीनी जिम्मेदारी है। ये हमारी पूरी नक्ल हरकत इन चीज़ों को जिंदगियों में जिंदा करना है, इसके मुताबिक जिंदगी बनानी है। ये अखलाक बने, ये हमारा मामले बने, ये हमारे मुआशरत में सुधार हुआ और हमारी इबादत में जान पैदा हो गई इस मेहनत के रास्ते से और इस खुरूज के रास्ते से और इस नक्ल हरकत के रास्ते से। तो इंशाअल्लाह दुनिया में हिदायत की हवाएं चलेगी, नूर फैलेगा। जैसे ये रोज सूरज रोशनी के साथ निकलता है, पूरी दुनिया जगमगा जाती है, ऐसे ही अल्लाह के राह में निकलना और अल्लाह के रास्ते में खुरूज होना, इन सिफात के साथ में, इन मेहनतों के साथ में, इन चीजों को सीखते हुए, इस पर अमल करते हुए जब चलेंगे तो इनके चलने से नूर फैलेगा, हिदायतें फैलेगी, ईमान फैलेगा, इबादतें जिंदा होगी, मामला सही हो जाएंगे, मुआशरत का सुधार आ जाएगा और लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा होगी। ये मेहनत है और ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायबा इमामत ओयो है बदी साहबाई के रंग संचर हंगेबा इम्मा हर्ज करीनो अदि मतमत धाय एखोय के वखल द लाइदना करियना जो मखोइन अफब थबक तो आगदे एखोय अफब तवगदि मखोइन फत्तब थबक तो एदि तारगदे एय फत्तब थबक तवगदि छि नत्तेबा मखोय तवगेरा तवरोयरा आई की जिम्मेदारी सी करिनो अफब मामलात अमसुन माशरात छि लोइनमक छि चुमनंगाय की आई अफब थबक तवहनंगाय मखोय देगी हे नंगाय होतबदुनेबा सिनेबा इम्मा हरिस करीब मसीह से चुमनंगाई होत नखरबा अदुई तारगदि आई हर एक लाइन मामलात वगैरह माशरात वगैरह इबादत अखलाकियात से लोइनमक अल्लाह ताला ना आई पुलम न चुमहन बिगनेबा सिगी शरिया दगी सिगी पोसक से लागनगाई की तमक्तने बे कोई नकलो हरकत से आई कोई न थोइबा मफम से पुल्लिबा तबलीगी जमात थोइबा अमसुन आईना आई की सागी जान मान लोइनमक लगाई नि पोसक से सिगी पोसक से लागनगाई गिनेबा करीब मसीह की पोसक से आई की थमई मनुदा आई की पुंची से संग खरबा अदुई तारगदि की शरिया देगी पूरी दुनिया से हिदायत ला कदोई बने पूरी दुनिया से हिदायत फंगिबो तारगदि पूरी दुनिया से अफबोय न ओन गदोई बने आई की शरिया देगी अदुना आई कोई सी की पोसक सिंह से चुम बदरकार ने चुम नंगाई की तमक ने आई कोई सी अल्लाह की लंबी द थोई बसी से आई कोई अचौक जिम्मेदारी मखल अमल। तो ये हमारी सबकी जाती जिम्मेदारी है। मरते ही जब कब्र में रखे जाएंगे हमसे पूछा जाएगा वमा दीनो का, क्या कर क्या आया बताओ। इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी हम में से हर एक की है। मालदार बनना नंबर 2 की चीज है, दुनियादार बनना नंबर 2 की चीज है। मेरे दोस्तों असल दीनदार बनना है और दीनी जिम्मेदारी पूरी करना ये सबसे पहली जिम्मेदारी है। इसलिए इसको समझना है और उसके लिए अपने औकात को लगाना है, अपनी सलाहियत को लगाना है, अपने माल को लगाना है ताकि ये चीजें लगने के नतीजे में ये जिम्मेदारी पूरी हो जाए और जो जिम्मेदारी पूरी करके जाएगा उसको उसका बदला मिलेगा, उसका अजर मिलेगा। अदुना से अखोई की एक अचौक जिम्मेदारी मखल अमने अखोइना दुनिया तानबा सिन 2 नंबर में अखोइना अखोई इसा से पैसा पाइनगाई होतबा मालदार होइनगाई होतबा सिन 2 नंबर की पोसक ने सिनतेबा अल्लाह ना पामले बस अखोई अल्लाह ना पामले बस आई की पुंसी सिना लैनिबा मामलात माशरात पोसक खुदिक मक से लोइनगाई चुमनगाई होतबा अदुगिने सिगी नकलो हरकत से अखोइना थोगदि सिदा तम्मगदि सिगी पोसक सिंग से संगत कनेबा करीब अखोइना तमहौद्रे ने अदुई तारगदि अखोइ अदु खसारा दो इगने हे कयामत के निमित्त कबर द सब मतमदा दिन हाइरि बसि करिनो हाइबेगी पखुंदो अखोइ बीरु बंगम मोय करीब म दिन से अखोइना थमoi सेंग न मपुं फाना चलहौरबा तबलीगी लाइन दा अल्लाह की लंबी की लाइन दा आई ईसा की माल से वो लगाए रगा आई ईसा की जान से वो लगाए रगा आई ईसा की तकाजा से वो मेहनत से वो हर एक खुद मक्का से लोई न मकाई न लगाए रगा आई न दिन से वो तब हो रबा अतः तारकदी सिगी तकाजा सिगी मतुंगिना आई न तौखरी में थमुक सिगी मतुंगिना है कयामत की। इसी जिम्मेदारी के साथ में अपने घर में जीना है, अपने बच्चों में जीना है, अपने बीवी में जीना है, ये भी हमारी जिम्मेदारी है और उसका कुरानी फैसला है। ऐ ईमान वालों, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को, अपने औलादों को जहन्नम की आग से बचाओ, ये भी जिम्मेदारी है। कल हम सबसे
अपने बारे में पूछ होगा, और हर एक शौहर से उसकी बीवी के बारे में, हर बाप से उसके औलाद के बारे में, हर जिम्मेदार से उसके माताहतों के बारे में सवाल होगा। ये जिम्मेदारी है उनको कैसे दीन देना, उनको कैसे जो है समझाना, उनको आखिरत कैसे समझाना। इसके लिए अपने घरों में तालीम के हलकों के रास्ते से फजाइल आमाल की तालीम हो, फजाइल सदक़ात की तालीम हो, और उसके रास्ते से घरों में बैठ करके सबको आखिरत समझाई जाए, सहाबा की जिंदगी समझाई जाए, नबी की सुन्नतें समझाई जाए, मरना और मरने के बाद के हालात को मुज़ाकरे में लाया जाए। इससे इंशाअल्लाह ये जिम्मेदारी पूरी होगी घरों के लाइन की। ये भी हमारी जिम्मेदारी है, इसके लिए भी अल्लाह ने ये जिंदगी दी है। amal kudin bata si chumba si aigi ajono जिम्मेदारी amane aikoina Allah ki lambi da toga si ki zariya da aigi sabi kunci si karma ina lenga da ke habi si chumba da karne adoga aigi tumda lai riba aigi imam manunda lai riba aigi itu sing aigi ijasing si mohoigi chumban basisu mohoigi mamala pusat kudin mo chumban basisu si aigi जिम्मेदारी ne kayamat ki mitane ba hangado ri basi orang ki manunda suyawi bane ba adugum laba nahaki imam manunda singado adugum laba mayyit degi kango sinangi जिम्मेदारी ne hey suksoi sui dar maki nangi itu ki matanga nangi icha ki matanga nangi lai ri imam manu isini nau singsi ki matanga suksoi sui dar maki hangado ri se aina mahoi ni halati chungado ri tusu ai ki halati chungma ko matung dale ahan ba aina Allah ki lambi da thoga ai ki posak kuding ma ai ki halat kuding ma ai ki mangala kuding ma kase chungma bot chi ki atoba जिम्मेदारी makala mane se ki si chungma matunga ai ki emu manunga talim ki zariya degi fasail amal ki zariya degi fasail sadaqat ki zariya degi mahoi da thaman da ta pai bane mahoi da dindar mahoi singche ko hel basisu ai ki atoba जिम्मेदारी amane kali ko mahoi singche ko ya gadi ai ko ni halat emu manunga halat singche choi choi da ma ki chungare ba na ta ta gadi ai kaya ma ki bitta ai ko da choi choi da ma ki hangani ai le emu manunga जिम्मेदारी sisu pammo ba adu ta gadi ai wonda ne ba bharat karo और ये दोनों जिम्मेदारियां हर एक में जिंदा हो जाए, उसके लिए तीसरी जिम्मेदारी है, वो नबूवत वाला काम है, हुजूर वाला काम है, हुजूर वाली मेहनत है। और जो हमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु के सदक़े में विरासत में चीज़ मिली है, इसकी हिफाजत करना भी ज़रूरी है, और इसमें तो इसकी तरक्की देना भी ज़रूरी है। जैसे बाप का इंतकाल होता है तो कुछ विरासत में माल छोड़ता है तो वारिस उसकी हिफाजत भी करता है और उसकी तरक्की की कोशिश भी करता है। वैसे आप अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए दीन छोड़ा, दीन की मेहनत छोड़ी है। आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, और इस उम्मत का हर फर्द वो आप अलैहिस्सलाम का वारिस है। ये उसकी जिम्मेदारी है कि अल्लाह के दिए, अल्लाह के नबी के लाए हुए दीन की हिफाजत भी करे और उस दीन को फैलाने की कोशिश करे। कल क़यामत के दिन इससे पूछा जाएगा कि हमने प्यारे नबी के उम्मत में तुमको बनाया था और ये जिम्मेदारी तुमको दी थी, तुमने उसके लिए क्या कुर्बानियाँ दी और तुमने उसके लिए क्या किया। इसलिए मेरे दोस्तों ये तीसरी जिम्मेदारी है कि हमारी जान माल, हमारी सलाहियतें उस दीन पर लगे, उस मेहनत पर लगे जिस पर आका का सब कुछ लगा, आका के सहाबा पर से सब कुछ लगवाया। ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए मेरे दोस्तों अल्लाह ने जान भी दी है, माल भी दिया है, सलाहियत भी दी है। इसको जब तक इस उम्मत ने इन तीनों चीज़ों को दीन और दीन की मेहनत पर लगाया, उम्मत फलती रही, फूलती रही, तरक्की करती रही और खुदा के रहमत के साए में रही। जब से इस उम्मत ने इस मेहनत को, इस जिम्मेदारी को छोड़ा है, ये उम्मत जो है यतीम हो गई है। फिर से ये यतीमी से निकल करके अल्लाह के रहमत के साए में आ जाए, उसके लिए जिम्मेदारी है कि खड़े हुए और अपने इरादे करें और नियतें करें और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अपने हौसले दिखाए कि जो जान अल्लाह ने दी है, जो माल अल्लाह ने दिया है, जो सलाहियत अल्लाह ने दी है, जिस काम के लिए दी थी उससे बहुत कोताही हुई है, उस पर इस्तिग़फ़ार करते हैं, तौबा करते हैं और आज नियत करते, अज़्म करते हैं और अपने इरादे ज़ाहिर करके 4-4 महीने के लिए इरादे करें कि कौन इसके लिए अपने आप को तैयार करता है। aiki maamalat si chumba abi matunda aiki ibu manungi si जिम्मेदारी ani si atau ko जिम्मेदारी makal amane si ke makal ani si chumba ngai kita magdale ba atau ko जिम्मेदारी amala ini ba jo nabi karim sallallahu alaihi wasallam na ai koida tamam ni din si ke wari ko wirasat makal amane जो भी आएगी इमु मरुन देगी काना को मम्मी अमरा आएगी वारिस tamam mene adu ki kosak sing do ai koina tarki koina ngai ke hot na gane adu manghan na ngai hot na roeba
जो अल्लाह के रसूल आई कोई तमामी में दिन से आई कोई अच्छा कुछ जिम्मेदारी मखल्ला मनेगा सिगी से नबी एक वारिस लेगा विरासत लेगा नबी की सिगी से तक कोई तरक्की तो हम कोई पोशाक से सिगी जिम्मेदारी अच्छा आई कोई की जिम्मेदारी नहीं करीबुम्बा सिदा कोई ना तो उधर अगर तारगदी जो नबी ने आई कोई की दमकता ने तमाम भी जिम्मेदारी से मकुम भाना पर ठोक कर दुनिया मनुन करेगा आई कोई सी चंद गदोरी में से जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिगी दिन से मकुम भाने हिंगन लगाई की दमकता महाना namjaba posak puding makasi lagai khriba dumaina amasung sabai ke ram chinchida lagai khriba dumaina ai koi da pe iba adugum la jan mal matan se ai koi chu chigi din ching nangai di damakta taraki koi nangai di damakta lagai ko sisi atu ko jumedari makal amaneba kali ko bai koi na sigi si Allah ke rasul amasung sabai ke ram chinchida tamam me adu ai koi ni sida pamthok da bataraba adu taragadi yatim bumbane aduna sigi si yatim de ki koi na तरक्की हुई नहीं की दमकता ऐसे ईसा की जान हमसुं अल्लाह ने पे इब मान असो हमसुं मतन सिंचे लगाएगा या तीमिदे की कोई थोड़ा आगा दिन से की तरक्की तो मंगाई बहुत तगड़ा बनेगा अदुना ऐ कोई की जिम्मेदारी अनि ऐ के मामलात हमसुं ऐ के अदुगम लबा इमुंग की जिम्मेदारी सिंचिबु जुम नंगाई की दमकता अहुम सुब जिम्मेदारी अचुब जिम्मेदारी से करिनो ऐ खोई दा अल्लाह के ऐ अल्लाह ने खोई दा पीरी में पुंसी सिदा ऐ की जान ऐ की माल ऐ की मतम से सिगी से दिन से हिंग नंगाई की दमकता अल्लाह की लंबी दा थोगा लगाईबा सि अचुब जिम्मेदारी मखल अमनेबा सिगी से तौदा बतारबा अतुई तारगा ऐ की मामलात तो सुमरोएबा ऐ की मुंग मनु सुमरोएबा हयम कयामत के निमित्त अल्लाह ने सुछोई छोई दरम की फागनेबा ऐ इंगोन दा पिरखरिबा माल दुगी मतंग दा हंगकनी अइमोंदा पिरखरिबा जान अइमोंदा पिरखरिबा मतम दुगी मतंग दा हंगकबा मतंदा अखोय दा करिगुंबा पौखुम अमु होबा लैरोय अदुना सिगी पोलम अनि सि चुम नंगाई दा मक्ता अहुम सुबा जिम्मेदारी अचौबा सि करिनो हाइबा मतंदा अखोयना थमोय सेंगना अखोयना ngasi फोदा अइगी पुतुंग दा हौखरिबा पुंसी अखोयना गफलत की साता अखोयना अइगी इसागी मर्जी की मतुंग इना पुंसी लेन थ्रिसिगी अल्लाह दा थमोय सेंगना तोबा तोबा अदुगा हौखरिबा पुंसी सिगी दमकता चुम नंगाई की दमकता नेबा अखोय अल्लाह की लंबी दा थोगा अइगी इसागी जान अमसुंग माल से लगाए रगा नुमित निपुन 4 महीना की अखोयना था मरी की नेत तौरगा अइगी मामलात से चुम नंगाई की होनबा अदुगा अइगी पुंसी से होन अइगी पुंसी से चुम नंगाई की होनबा अइगी इमुंग मनुंग की पुंसी दु चुम नंगाई की होनबा हयें कयामत की निमित्त हंगकबा मतम दसु यामना लाइना पखुम पिरगा अदुगम लबा जन्नत की लंबी दु संखि नंगाई की दमकता अखोय लोइनमक नेत तौसे था मरी की दमकता जो भी हजरात लैरिबा फम्मिबा हजरात पुनमक से थमोय सेंगना अखोय 4 महीना थोकनंगाई की दमकता अखोय थमोय सेंगना ने सब तैयार है इंशाअल्लाह कौन कौन तैयार है 4 महीने के खड़े हो जाओ इंशाअल्लाह कना कना तैयार हो 4 महीने के इरादे करें इंशाअल्लाह जो दी हुई उसकी जिंदगी है उसी के दिल पर लगाना है 4 महीने के लिए इरादा करें तश्कील वाला होना चाहिए ना नाम लिखने वाला कोई तैयारी किया है मिंगीना बम्मी नहीं तो जो साथी 4 महीने के लिए इरादे के खड़े हो जाए 4 महीने के लिए इस इज्तिमा से निकलने के लिए जो इरादे लेकर आए हैं और इस मजमे में तैयार हुए वो खड़े हो जाए हमारी तरफ हो जाए इरादा तो सिंह होगलो तश्कील वाला सिंह होगलो अदुगा इंशाल्लाह मिंग इनंगाई होता और मैं दोस्तों फरमाए 4 महीने के इरादे करें क्योंकि कातिब तश्कीली न वो कातिब पदों ले माने वफद ले पीरो थामरी की अल्लाह की लंबी तो थूपी के तो हजरात में कहीं तो मुक्के लेखत पियोलो है ना थामरी चिल्ला होंगी ये जिंदगी जिम्मेदारियों के पूरा करने की जगह है जो करेगा आखिरत में पाएगा भाई थामरी की अल्लाह की लंबी तो थूपी के तो हजरात में कहीं तो हमते ले खुद हमते ही भी तश्कीनों में कहीं कातिब में कहीं 4 महीने इसलिए कि 4 महीना बहुत अहम है दोस्तों 4 महीने की बड़ी ताकत है उसमें बड़ा अमर है अगर 4 महीने सही तरीके से लग गए जैसे हमारे बड़े फरमाते हैं तो अल्लाह ताला उसके रास्ते से बहुत बड़ी ईमानी कुव्वत अता फरमाते हैं अल्लाह के बंदो अब थोड़ा सा वक्त तो है इसमें अगर सामने हजरत तकरीर फरमा रहे हैं और अपने गफलत में पढ़ रहे हैं और सो रहे हैं तो ये कितनी बदनसीबी वाली बात है आप जरा सोचिए वक्त थोड़ा सा अब नाश्ता का वक्त है तकरीर खत्म हो रही है और आप उसमें गफलत में पड़े हैं अच्छा चिल्ले के लिए बताएं 4 महीने की नियतें करें चिल्ले के लिए बताएं हाँ मरी की रेफत चलो मैं तुम दा हुजिक जिला
minipuri khaktangi Allah mida topik dawa